Hello and welcome to 3.0 TV. I am Vishakha Thakur. And I am Ruchi Sharma. You are watching the weekly wrap. Bitcoin and the broad cryptocurrency market sold off during the better part of trade this week, with fears over inflation and continued rate hikes resurfaced. However, the US lawmakers agreeing over widely debated debt deal has helped calm investor nerve. Bitcoin has reclaimed $27,000 mark and was recently trading 1.05% higher at $27,066. Ether, the second largest crypto in market value, was recently trading at about $1,889, up 1.8% over the last 24 hours. Analysts say that the largest crypto by market value is in an accumulation phase. In meantime, they have maintained that repricing interest rates higher has been a sort of a headwind. Among others, Litecoin continues to enjoy winning run after rising 7.5% in the last 30 days. The second oldest coin is up almost 10% for the week. तो यहाँ पे बिटकॉइन ने $27,000 का जो मार्क है वो रिक्लेम किया है और अभी बिटकॉइन 1.05% हायर ट्रेड कर रहा था। बिल्कुल। Moving on, Bitcoin prices on the Australian arm of Binance, the world's largest cryptocurrency exchange, were almost 9,000 Australian dollars lower than prices on rival exchanges on Tuesday. In a sign, customers were seeking to exit their positions quickly. The price of the world's biggest cryptocurrency, Bitcoin, was at around 34,000 Australian dollars on Binance Australia, compared with 43,000 Australian dollars on BTC markets, an Australia-based cryptocurrency exchange. Earlier this month, the Binance unit said some customers in Australia will not be able to deposit or withdraw money after a third-party service provider cut off its service. Binance has been battling regulatory suits and probes around the world. The company said in April it would close its Australian derivatives business after relinquishing a financial services license amid a regulatory probe into its operations. तो यहाँ देखा गया है जो बाइनेंस ऑस्ट्रेलिया है उस पर जो US डॉलर का जो प्राइस है वो काफ़ी कम है, 9,000 कम है। और क्योंकि एक थर्ड पार्टी पेमेंट प्रोवाइडर्स की जो सर्विस है वो बंद हो गई थी, तो अब सारी जो पेमेंट्स उस पर होती हैं वो डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से ही हो सकती हैं। और जैसे कि हमने बताया भी कि बहुत से कस्टमर्स के जो डिपॉजिट्स एंड विड्रॉल्स रोक दिए गए थे, तो इसका एक बहुत ज़्यादा मैं कहूँगी कि एक रिपल इफेक्ट है। An artificial intelligence-based algorithm created by UK researchers can determine whether breast cancer has progressed to the liver, lungs, brain, or bones. The structures beneath the arm that serve as one of the first sites where breast cancer might spread in women with triple-negative breast cancer. The lymph nodes can be examined for changes using an AI model created by a team at King's College London. About 10 to 15% of all breast tumors are triple-negative, and these tumors can be more aggressive. In the early years after therapy, it is also more likely to come back or spread. The AI model described in the Journal of Pathology examines the immune response in the lymph nodes to find signs of triple-negative breast cancer spreading. On more than 5,000 lymph nodes that 345 patients gave to biobanks, her team tested the AI model. They validated the AI model's ability to forecast the likelihood that the sickness would spread to other organs through testing. The researchers are hoping that this AI model will eventually be put through clinical trials and that it might one day help doctors plan treatments. So, World Health Organization के according 2.3 million ब्रेस्ट कैंसर्स होते हैं ईयर ओवर ईयर ग्लोबली, और इसके साथ साथ जितनी भी वुमेन हैं जो कैंसर उनमें पाया जाता है, स्पेशली ब्रेस्ट कैंसर से 95% ये देखा जाता है कि ब्रेस्ट कैंसर के थ्रू ही जो डेथ्स हैं वो ज़्यादा होती हैं। तो आई थिंक ये जो यूके में एक लंदन किंग्स कॉलेज लंदन है, उन्होंने बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लिया है वहाँ के रिसर्चर्स ने, क्योंकि ये AI बेस्ड एक टूल बनाया है जो कि ब्रेस्ट कैंसर कहाँ तक फैला है या कितना फैला है, आपकी बोन्स हो या आपके आर्म के नीचे से जैसे वो शुरू होता है फैलना, तो किस तरीके से कितना हद तक फैल चुका है, ये सब जो डिपिक्ट करने में AI का वो यूज़ करेगा। आई थिंक वो जो टूल है वो बहुत ही अच्छा है, लेकिन अभी ये टूल क्लिनिकल ट्रायल्स में है एंड आई थिंक अगर ऐसा पॉसिबल हो जाता है तो बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा सभी के लिए, बहुत सहूलियत हो जाएगी। आई थिंक विशाखा हम सब मतलब मैं कहूँगी कि ब्रेस्ट कैंसर इतना फैल चुका है कि हम सब के आसपास हम किसी ना किसी एक दो लोगों को जानते हैं जो शायद इस प्रोसीजर से गुजरे हैं। तो इस तरह का जो AI ने जैसे तरक्की की है
बहुत अच्छा है, क्योंकि अगर अर्ली डिटेक्ट हो जाता है कैंसर तो हम उसे क्योर कर सकते हैं और बहुत सी लाइफ्स बचा सकते हैं। तो इस मैं कहूँगी डायरेक्शन में AI बहुत तरक्की कर रहा है एंड हम चाहते तरक्की करे ताकि ह्यूमन काइंड के लिए बहुत अच्छा हो। बिल्कुल। बढ़ते हैं आगे। द यूरोपियन यूनियन फॉर्मली साइंड इट्स लैंडमार्क मार्केट्स इन क्रिप्टो एसेट्स रेगुलेशन इनटू लॉ ऑन Wednesday, taking the bloc closer to becoming the first major jurisdiction in the world with tailored rules for the sector. The law was signed by the European Parliament President Roberta Metsola and Swedish Rural Affairs Minister Peter Kullgren, alongside a separate anti-money laundering law that requires crypto providers to verify their customers' identity when they transfer funds. तो ये एक बहुत बड़ी मैं कहूँगी अचीवमेंट है यूरोपियन यूनियन के लिए कि उन्होंने माइका रेगुलेशन को जो है अब साइन कर लिया इनटू अ लॉ, प्रॉपर लॉ, और ये पहला नेशन है जिसने कि क्रिप्टो के प्रॉपर लॉज रेगुलेशंस पूरे बना दिए हैं। एंड इट्स इट्स एन एग्जांपल, इट्स अ सेट एग्जांपल फॉर द एंटायर ग्लोब, ग्लोबली हर किसी के लिए, हर नेशन के लिए, कि वो अब इन रेगुलेशंस को, इन लॉज को फॉलो कर सकता है या फिर देख सकता है कि ये लॉज कितने सक्सेसफुल हैं। और सिर्फ क्रिप्टो को लेकर लॉज नहीं बनाए गए, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर भी अलग से लॉ बनाए गए हैं, और KYC होनी चाहिए किसी भी क्रिप्टो ट्रांसफर के लिए, किसी भी इस तरह की ट्रांजैक्शन के लिए। तो ये सब बहुत अच्छी मैं कहूँगी कि पहल है। जी बिल्कुल सही कहा आपने। इसके साथ साथ जो लॉ मेकर्स हैं यूरोपियन यूनियन के, उन्होंने ये भी कहा है कि जो उन्होंने एक जो रिसर्च की है, एक स्टडी की है, तो उनका कहना ये है कि जो क्रिप्टो एसेट्स है जितने भी, उसे एज सिक्योरिटी देखा जाना चाहिए बाय डिफॉल्ट। आई थिंक इट्स अ ग्रेट मूव एज यू सेड। Moving on. Hong Kong's renewed embrace of cryptocurrency has sparked a frenzy among exchanges, with many now vying for potential opportunities presented by the city-state. Here are a few companies that have expressed an interest in participating in Hong Kong's dynamic market. Yubai recently announced plans to launch a trading platform in Hong Kong on May 26. They are all gearing up to offer crypto trading services to users, including BTC and ETH, in the near future. The company's goal is to enter the market in legal and regulated manner, which will aid in the development of Hong Kong's Web3 ecosystem. Gate Group, the company behind the exchange Gate.io, is also on board. On May 23, it launched Gate.hk, a platform for registration and trading. Gate.hk, like Yubai, is in the process of obtaining a license from Hong Kong Securities and Futures Commission. Amber Group, a Singapore-based crypto-focused financial services provider, is also reportedly considering a move to Hong Kong. OKX and BitMEX are also participating. The former already serves local traders through its exchange app, while BitMEX's platform will be available to Hong Kong users on May 29th. तो जैसे हमने बात की कि यूरोपियन यूनियन जो ये लॉ लेकर आया है, तो हांगकांग का जो माइका है, आई थिंक इसने एक एग्जांपल सेट कर दिया है सभी के लिए, एंड क्रिप्टो फ्रेंडली रेगुलेशन जो ये हैं, बिकॉज सभी को एक क्लैरिटी चाहिए थी, तो वो हांगकांग की तरफ से सभी को मिली है। और अब जून 1 से इन्होंने लाइसेंस देने भी शुरू कर दिए हैं एक्सचेंजेस को। आई थिंक इसी की वजह से जितनी भी कंपनीज़ हैं या एक्सचेंजेस हैं वो हांगकांग की तरफ रुक कर रही हैं, जिसमें कि हम देखें तो गेट ग्रुप है या ऑम्बर, जैसे कि अभी मैंने बताया, और इसके साथ साथ बिटमेक्स है, OKX है, तो युबाई है। तो ये सारी जो एक्सचेंजेस है वो हांगकांग की तरफ अब रुक कर रही हैं। लेकिन इसमें एक यहाँ पे एक थोड़ा सा उन्हें एक वो कॉशियस भी हैं, क्योंकि जो हांगकांग है वो मेनलैंड चाइना के अंदर आता है, और चाइना में हमने देखा कि ब्लैंकेट बैन है क्रिप्टो करेंसीज पे। लेकिन दोनों के जो कुछ लॉज हैं वो सेपरेट हैं, अलग अलग हैं हालांकि, लेकिन फिर भी थोड़े से अभी जो एक्सचेंजेस है वो कॉशियस होकर चल रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन यहाँ पे हांगकांग पूरी तरह से गेयर्ड अप है टू बी एशियाज क्रिप्टो हब, और इसी तरफ वो कदम बढ़ा रहा है। और जैसे कि आपने कहा भी 1 जून से लॉज भी वहाँ पे शुरू हो जाएंगे, तो देखते हैं धीरे धीरे ये किस तरफ जाता है। तो हो सकता है अगर सब कुछ पॉजिटिव रहा तो जो एक्सचेंजेस के मन में एक डर है कि मेनलैंड चाइना के ये पार्ट है, तो आगे कुछ कोई दिक्कत तो नहीं आएगी, कुछ आगे इस तरह के रेगुलेशन तो नहीं आएंगे जो कि क्रिप्टो के अगेंस्ट होंगे। तो आई थिंक वो जो सारे अनसर्टनिटीज हैं और जो सारे मन में डर हैं वो भी धीरे धीरे हट जाएंगे। बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं। To maintain sustainable growth and stability, a top government official speaking on behalf of India's central bank has advised all banks to adopt blockchain and artificial intelligence technology. Deputy Governor Mahesh Kumar Jain spoke about risk management techniques related to sustainable growth and stability at a conference that the Reserve Bank of India organized for the directors of Indian banks. When it comes to being prepared for potential hazards, Jain stressed the significance of strong corporate governance structure and governance processes. Among other things, technological changes,
Changing client expectations and cybersecurity concerns have created new sets of risk for banks in terms of technology, business, and operations. He suggested concentrating on tech adoption as a solution to these problems. To prepare for the future, Jain recommended that Indian banks adopt innovative technologies such as AI and blockchain, along with focusing on digital transformation, enhancing customer experience, and investing in cybersecurity measures. तो ये एक और बहुत अच्छा कदम है आई थिंक, क्योंकि कोई भी नेशन चाहे क्रिप्टो करेंसी को अपनाए ना अपनाए, उसको लेकर थोड़े से एक हेजिटेशन हो या ना हो, टेक्नोलॉजी जो है वेब 3 टेक्नोलॉजी, चाहे वो AI हो, ब्लॉकचेन हो, वो फ्यूचर है, वो बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है हर सेक्टर में. इसीलिए यहाँ पर भी अब जो कहा गया कि बैंकिंग सेक्टर में भी AI को और ब्लॉकचेन को बढ़ चढ़कर इस्तेमाल करना चाहिए, जिसमें कि क्लाइंट सेटिस्फैक्शन भी होगी, एक टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन भी होगी, साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स से जो है उसके लिए हमारे पास एक आंसर होगा, उससे बचा जाएगा. तो अगेन आई थिंक इट्स अ वेरी वेरी गुड मूव एंड वेरी गुड एडवाइस फ्रॉम महेश कुमार जैन जी. तो आई थिंक ये अपकमिंग टेक्नोलॉजी जैसे ब्लॉकचेन, AI, इनके यूजेस बहुत ज़्यादा है. AI का हमने जैसे अभी मेंशन किया कि हेल्थ केयर में बहुत ज़्यादा यूज़ है, और भी सेक्टर्स में अगर हम ब्लॉकचेन की भी बात करें तो वो बैंकिंग है, एजुकेशन है, तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं इनके. एंड अब जो ये बैंक के सारे मेजर जो मेन बैंक्स हैं उनके डायरेक्टर्स के साथ जो ये मीटिंग हुई है, जो कॉन्फ्रेंस हुई है, इसमें आई थिंक सभी अब इन्हें अडॉप्ट करने के बारे में ज़रूर सोचेंगे. एंड आई थिंक इट्स अ ग्रेट मूव. Moving on, one of the first blockchain-related projects to be formally recommended by a government body is the pilot project that issued 65,000 caste certificates to the tribal population of Estapeli, Gadchiroli. This project was featured by Niti Aayog, India's top public policy think tank, and the United Nations Development Programme (UNDP). The district government of Gadchiroli has started a scheme to produce caste certificates that are cryptographically anchored on Polygon (POS) blockchain, according to a statement made by Niti Aayog and UNDP in the Best Practices 2023 Compendium. This makes it possible for anyone to instantaneously authenticate certificates using on-chain data that is uncensorable and openly auditable. The initiative is being tested in the Etapalli subdivision of the Gadchiroli district, primarily serving the 70% scheduled tribe population, which includes numerous private vulnerable tribal groups including Media and Gond. According to Niti Aayog and UNDP, this project will avoid malicious deplatforming of a person who legitimately belongs to a caste and is entitled to the government aid, and dramatically reduce fraudulent benefit or incentive claims. तो हमने अभी बात की कि कितने ज़्यादा यूजेस हैं इन टेक्नोलॉजीज़ के, और अब जो ब्लॉकचेन, आई थिंक गवर्नमेंट को ये बहुत ज़्यादा अच्छा इनिशिएटिव गढ़चिरौली के जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट है उन्होंने लिया है कि वो 65,000 कास्ट सर्टिफिकेट्स, ब्लॉकचेन बेस्ड कास्ट सर्टिफिकेट्स जो कि POS पॉलीगॉन पे बेस्ड होंगे वो इशू करने वाले हैं. एंड आई थिंक इसको फीचर किया गया है नीति आयोग में, जो कि इंडिया का पब्लिक पॉलिसी थिंक टैंक है, और इसके साथ साथ UNDP पे. आई थिंक इट्स अ ग्रेट मूव, क्योंकि काफ़ी बार ऐसा भी देखा गया है कि जो लोग एक्चुअल में जिनको ज़रूरत है ऐसे कास्ट सर्टिफिकेट्स की, या जो एक्चुअल में शेड्यूल ट्राइब से बिलोंग करते हैं, तो उन लोग को कभी कुछ फॉल्स सर्टिफिकेट्स या एक्चुअल में सर्टिफिकेट्स नहीं मिल पाते थे. लेकिन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी अब ये सब इंश्योर करेगी. सो आई थिंक इट्स अ ग्रेट मूव. अच्छा देखो, हम देखते हैं हर जगह कुछ ना कुछ कोटा सिस्टम होता है, कहीं ना कहीं SC ST के लिए कोटा होता है, और कई बार क्या होता है कि बहुत से लोग जो इस कास्ट से ना भी हो वो फॉल्स सर्टिफिकेट्स बनाते थे, और जो किसी और के लिए सीट्स रिजर्व है उन्हें वो इस्तेमाल करते थे, और जिनका हक है, जो परफॉर्म कर रहे हैं, जिनके लिए वो सीट है, उन्हें वो नहीं मिल पाती. तो विद दिस आई थिंक एक जस्टिस होगा, कोई फेक सर्टिफिकेट्स, फॉर्जरी, ये सब नहीं होगा. और प्लस जिसका हक है, जिसका कास्ट सर्टिफिकेट है, उसका एक रिकॉर्ड होगा प्रॉपर. एंड इस चीज़ में, सिस्टम में भी थोड़ी सी क्लैरिटी, और it'll become very simple and very clear and transparent. So moving on, the month of May was crucial for the Bitcoin network as it saw nearly $200 million in non-fungible token sales, a record-breaking figure. The rise of Bitcoin in the burgeoning NFT market was not an accident, but rather a calculated progression fueled in part by the innovative Ordinals protocol. The Ordinals protocol, which was created to etch data such as JPEGs onto Satoshis, has propelled Bitcoin's rise in the NFT space. This advancement allows for new and creative uses of the network, as well as a plethora of opportunities for digital artists, collectors, and enthusiasts. The record sales not only highlight Bitcoin's potential and flexibility, but also demonstrates the growing public interest and trust in the potential of NFTs. तो Bitcoin लीडर तो है ही, चाहे वो करेंसी की बात करें या ब्लॉकचेन की बात करें, और
बस यहाँ पर जब वो ऑर्डिनल्स भी लेकर आया, बिटकॉइन ऑर्डिनल्स, तो बस एक कमी थी कि इनके पास इथीरियम की तरह, जैसे इथीरियम के पास ERC20 टोकन है, इनके पास कोई टोकन नहीं था। ओके, तो जब BRC20 टोकन आ गया तो उससे एक बहुत बड़ा जंप जो है वो बिटकॉइन ऑर्डिनल्स को मिला। वैसे भी इसके अपने कुछ फ़ायदे हैं, जैसे कि टैप रूट जो अपग्रेड है उससे बहुत ज़्यादा अच्छे से वेरीफाई कर पाते हैं, बहुत स्पीडी तरीके से जो ट्रांजैक्शन हैं वो वेरीफाई होती हैं और प्रोसेस होती हैं। साथ साथ आप जो भी JPEG है या फिर आपका कुछ भी आपका कोई टेक्स्ट है, आप सीधा सातोशीज पर इंस्क्राइब कर सकते हैं। सातोशी डिनोमिनेशन है इसका बिटकॉइन का, तो बहुत से फ़ायदे तो हैं ही, इसका भी फ़ायदा मिला है और इसलिए हमने देखा कि इतनी ट्रांजैक्शंस बढ़े हैं। और अब बिटकॉइन जो है वो BRC721E टोकन भी लेकर आया है, जिससे कि इथीरियम NFTs को बिटकॉइन NFTs में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो आई थिंक इट इज़ ओनली ग्रोइंग और वक्त के साथ देखना पड़ेगा कि क्या बिटकॉइन NFTs इथीरियम NFTs को एक कड़ी टक्कर देती हैं। बिल्कुल। तो जैसा आपने कहा कि बिटकॉइन लीडर तो है ही, आई थिंक इसकी वजह से NFTs को तो एक बूम मिलेगा ही और इसके साथ साथ बिटकॉइन के भी जो प्राइस है वो ऊपर जाएंगे क्योंकि आप देखिए तो जिसको भी NFT में ज़्यादा इंटरेस्ट है वो बिटकॉइन NFT अगर ये यूज़ करता है तो इसके बाद बिटकॉइन का प्राइस ज़्यादा ऊपर जा सकता है, उसकी वजह से क्रिप्टो माइनिंग जो एक्टिविटी है वो भी बढ़ सकती है। आई थिंक इट्स अ गुड मूव एंड बिटकॉइन के लिए भी और NFT दोनों ही के लिए ये अच्छा है। मूविंग ऑन, Web3 and Metaverse market in India can reach $200 billion by 2035, a consultancy firm said on Thursday. To reach $200 billion, the Web3 and Metaverse market will grow at 40% per annum till 2035 as per an official statement. The consultancy firm termed Metaverse as the future version of internet, which will be blending the frontiers between reality and virtuality at the convergence of immersive spaces, social and collaborative experiences, and the creator economy. Globally, Web3 and Metaverse are pegged to become a $13 trillion opportunity by 2030, which will be about 8% of global GDP then. सो बहुत अच्छी ये रिपोर्ट आई है, इट्स वेरी पॉजिटिव कि इंडिया के जो मेटावर्स या Web3 मार्केट है इट इज़ गोइंग टू बी $200 बिलियन बाय 2035 और यहाँ पे ग्लोबली हम देखें तो वो $13 ट्रिलियन होगी। सो आई थिंक बहुत पॉजिटिव ये है क्योंकि हम देख रहे हैं कि Web3 मेटावर्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट सभी कंपनीज़ का, टेक जायंट्स हम देखें जब से फेसबुक ने रीब्रांड किया है 2021 से मेटा में, तब से इंटरेस्ट और ज़्यादा बढ़ गया है मेटावर्स में। और Web3 में ब्लॉकचेन की हमने अभी इतनी ज़्यादा बात की है, गवर्नमेंट अब एक्सेप्ट, सो आई थिंक कि इन्वेस्टर्स, गवर्नमेंट और स्टार्टअप्स भी बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं Web3 टेक्नोलॉजीज़ के और मेटावर्स की अगर हम बात करें तो सभी लोग अगर मिल के ये काम करें तो आई थिंक और ज़्यादा ये हमारे जो इकोनॉमी है उसमें एक बूस्ट मिल सकता है। बिल्कुल विशाखा, AI में और मेटावर्स में बहुत पोटेंशियल है और जैसे कि हम देख रहे हैं सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं कि मेटावर्स में गेम्स है, बट मेटावर्स देखो आप यू हैव योरसेल्फ कवर्ड सो मेनी स्टोरीज की फार्मास्यूटिकल्स में, मेडिकल सेक्टर में कितनी एडवांसमेंट्स हो रही हैं, तो आगे चल के मेटावर्स एक्चुअली बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है और एक इंटीग्रल पार्ट बनने वाला है हमारा। मेनली जो कहा गया है कि इंफ्रास्ट्रक्चर और जो बैंकिंग सेक्टर्स है वही इस ग्रोथ को ड्राइव करने वाले हैं। बिल्कुल सही। सो मूविंग ऑन, soccer player Cristiano Ronaldo has entered into an exclusive multi-year NFT collaboration with Binance, one of the largest cryptocurrency exchanges in the world. The partnership should allow Binance to launch a global campaign to market Web3 and NFTs to the football star's devoted supporters. As per the agreement, Cristiano Ronaldo and Binance will produce several collections that can only be purchased on the Binance NFT exchange. Later this year, the first collection will go on sale and contain pieces made in association with Ronaldo. Ronaldo says that NFTs are a new field he's venturing in now and for the future. Chanpeng Zhao, the CEO and founder of Binance, acknowledged Cristiano Ronaldo's soccer successes and pointed out that he has established himself as an icon in various fields. Zhao continued by saying he had cultivated one of the most devoted fan bases worldwide through his sincerity, charitable and talent endeavors. तो क्रिस्टियानो के कितने फैंस हैं ग्लोबली, मतलब उसका हिसाब लगाना मुश्किल है। तो ऐसे में बाइनेंस ने देखा ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है, अगर इतना बड़ा प्लेयर हमारे प्लेटफॉर्म पर आ जाता है तो ऑब्वियसली सोचिए कितना ज़्यादा ट्रैक्शन, ऑलरेडी नंबर 1 एक्सचेंज है ही बाइनेंस, उसकी NFT प्लेटफॉर्म को कितना फ़ायदा मिलने वाला। अब तो बाइनेंस ने अपना NFT लेंडिंग प्लेटफॉर्म भी शुरू कर दिया है। तो यहाँ पे एक बहुत ही एक्सक्लूसिव NFT कलेक्शन जो है वो क्रिस्टियानो अपनी लॉन्च करने वाले हैं इन एसोसिएशन विद बाइनेंस। और बाइनेंस की ऑलरेडी एक CR7 NFT है, उसके होल्डर्स के साथ क्रिस्टियानो ने एक ऑनलाइन मीट एंड ग्रीट सेशन भी किया। सो आई थिंक दैट इज द मोस्ट
हर फैन के लिए सबसे ज़्यादा तो ये होता है कि मैं अगर अपने आइडल से मिल लूँ तो उससे बड़ी और क्या चीज़ है, तो बाइनेंस वो फुलफिल कर रहा है उन फैंस के लिए। बिल्कुल, तो चाहे वो स्पोर्ट्स के जितने भी MS धोनी की हम बात करें, सचिन तेंदुलकर से अभी NFT के थ्रू सभी को मिलने का मौका मिला या वर्चुअली बात करने का, आई थिंक बहुत ज़्यादा खुशी है फैंस के, क्योंकि रियल लाइफ में एक्चुअली कभी कभी ये इम्पॉसिबल हो जाता है। और इसके साथ साथ देखें तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो खुद ये चीज़ कहते हैं कि NFT जो है वो फ्यूचर जो टेक्नोलॉजीज है उसका पार्ट है और यही फ्यूचर होने वाला है एक्चुअल में। सो आई थिंक इट्स अ ग्रेट मूव बाय बाइनेंस, जो कि हमेशा कुछ ना कुछ कोशिश करता रहता है अपने यूजर्स को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए। सो दैट्स ऑल इन दिस सेगमेंट ऑफ द वीकली रैप। दिस इज मी विशाखा ठाकुर साइनिंग ऑफ। This is me, Ruchi Sharma, signing off. Do like, share and subscribe to 3.2TV, and for more information, please log on to our website www.3versetv.io or scan the QR code. Have a great weekend.